हेलो। हेलो। Hi, Rajiv. This is Mukesh. मुकेश जी कैसे? वेलकम टू वेबिनार। Yeah, thank you so much. अब I वेल्थ will बकेट की तरफ, start. मैं राजीव गुप्ता Start. वेल्थ बकेट की तरफ से आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर का स्वागत करता हूं। हम बहुत जल्दी इस वेबिनार को स्टार्ट करने वाले हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं अभी। सर, वी आर वेटिंग फॉर मोर पार्टिसिपेंट टू कम। All right. So we'll wait for some time. या हेलो एवरीवन, वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन। विद इन 5 मिनट वी विल स्टार्ट।
हाँ कृष्णा क्या हाल है? हाँ दोस्त हो गया तो चेक है। मुकेश जी, कैन वी स्टार्ट? Yes, Rajiv, we can start if you are okay. मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ आपका। Yeah. मैं भी welcome to webinar, okay, hosted by the Wealth Bucket. Wealth Bucket is a digital platform where one can invest in a mutual fund, gold, and you can buy or sell you can buy the insurance also. Mr. Mukesh Nagar, Future Generali India Life Insurance के state head हैं, and he's having an immense experience. He's having a more than 20 years experience of selling the insurance. आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, what is the need of an insurance, life insurance, how to sell the life insurance. जब हम किसी को लाइफ इंश्योरेंस बेचने जाते हैं या उसको पिच करते हैं, तो what should be the our pitch? Now we will discuss on these 3 points. After that we will having a question and answer session. Mukesh ji, over to you. Rajiv, thank you so much for introducing me, and I hope I'll be able to add. आज जो हम बात करेंगे इस सेशन में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको। राजीव जी, क्या ड्यूरेशन क्या है हमारे इस वेबिनार सेशन की? हाउ मच टाइम वी हैव? Sir, 30 to 40 minutes for discussion, and after that 20 minutes for the question and answer session. तो दैट मीन्स 1 घंटा है हमारे पास? बिल्कुल सर। Okay, so I welcome you all. This is the first time हम एक दूसरे के साथ आज बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि जो भी हम डिस्कशन करें ये एक तरफा ना हो, दोनों तरफ से डिस्कशंस हो, और हम एक दूसरे को बेहतर जाने। आज एक ये बहुत अच्छा मौका है। ऑलरेडी हम एक फाइनेंशियल सेक्टर में हैं और कस्टमर से मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, मे बी लीगल एड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम इंश्योरेंस के सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। कैन यू एबल टू हियर मी? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस मुकेश जी। ओके राजीव, मैं चाहूंगा कि मैं others are mute. नहीं, others are on a mute, that's why they are not able to answer. अच्छा, नहीं, वो चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं, और एक बार मैं बोल देता हूँ, स्मॉल इंट्रोडक्शन हो जाए, कौन कौन है और वो क्या क्या करता है, फॉर जस्ट 20 सेकंड ईच। Nisa, can you unmute everyone? Yeah, Yes. sure, sir. Nisa, three more people are there, उनको भी आप एडमिट कर लीजिए। Yes, done, sir. I did. डिस्ट्रीब्यूटर्स में जिसको कोई क्वेरी हो वो अपना हैंड रेज कर दे, हम उसको इमीडिएटली अनम्यूट कर देंगे। सच टेक्निकल प्रॉब्लम है, सबको अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो जिसको भी क्वेरी होगा हम उसको अनम्यूट कर सकते हैं। हाय।
विनय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? Yeah. या प्लीज Hi. बताइए। Myself is Vinay. I was associated with the Wealth Bucket from past 1 year. I was only doing the mutual fund distribution. Now I got to know that we're also into insurance segment. I've already and POSP with other uh, partners like Mint Pro and all. Now I'm interested to go ahead with Wealth Bucket. Okay, thank you, Vinay ji. Mukesh sir, can you answer the query? Sorry, there was some problem in my Wi-Fi. I could hear that Vinay was asking a question. Can you repeat for a second? अब विनय जी का क्वेश्चन था कि वो 1 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी तक म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस के लिए कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल, that is the only reason, Mr. Vinay, we are gathered here, and I will run a presentation, small presentation, so that we can able to understand why it is important and how we can reach out to the customer and what is the best. Yes, I'm eager to know that. No issues. Yeah. Thank you. We'll start. I think जो लोग बात करना चाह रहे हैं एक बार बता दें, जैसे विनय ने बताया, there are about 33 people जो ऑलरेडी कॉल पर है। मैं सुनना चाहूँगा दूसरे ग्रुप और बात करें मुझसे, एंड देन मैं फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। डिस्ट्रीब्यूटर्स में कोई और कुछ? शोभा कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? निशा प्लीज अनम्यूट द शोभा कुमार। सर आई कैन ओनली रिक्वेस्ट देम टू अनम्यूट उनको खुद से ही करना पड़ेगा। ओके, शोभा कुमार जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस, बताइए शोभा कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार। बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि अभी वेल्थ बकेट ने इंश्योरेंस शुरू किया है। हाँ जी, इंश्योरेंस में जो एडवाइजर्स होंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या पैकेज रहेगा और क्या ऑफिस की सपोर्ट रहेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कोई भी नया बिजनेस करने से पहले अगर ये सवाल आपके मन में नहीं आते तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो आई एम हैप्पी कि शोभा कुमार जी आपने एक क्वेश्चन पूछा। ये सारे क्वेश्चन आपसे सेशन हम रखेंगे, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बोला था। शोभा जी, तो आप अभी है कहाँ पर, कौन से रीजन में है? बेसिकली आई एम डूइंग LIC इंश्योरेंस। एरिया में आप ऑपरेट करते हैं, मतलब आपका ऑफिस आप कहाँ किस एरिया में ऑपरेट करते हैं? दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी, कहाँ? दिल्ली द्वारका। अरे वाह, आप तो दिल्ली में ही। वेरी गुड। क्या कर रहे सानू? वी हैव सुनील कुमार ऑल्सो। सुनील, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, शायद उनका कनेक्शन, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। सर आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं सबसे यही पूछ रहा था कि आपका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन अगर दे दे। कुंदन मिश्रा, लाल सिंह, माधुरी दीक्षित, मनोज, गायत्री, अभिषेक अरोड़ा जी भी हैं, सुरेश कुमार फ्रॉम LIC। एक बार अगर वो हाय हेलो कर ले तो हम अपना फिर कार्यक्रम शुरू करें। Yes sir, myself Kundan Mishra. जी कुंदन जी। Hello. हाँ जी। Yes, I am from Varanasi and currently I work in Max Life Insurance Company. I am in taken partnership of Wealth Bucket and it's going to be around 3 months only. वेरी गुड। तो आपने लाइफ इंश्योरेंस देखी है? Yes sir, I work in Max Life Insurance वेरी गुड company. Yes sir. ओके, तो शुरू करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। मैं आपको पहले एक छोटे से इंसिडेंट से बात करने के बताऊंगा। कोई भी मेरे सवाल का आंसर दे दे कि जब हम मोटर बाइक चलाते हैं
तो मोटर बाइक चलाने से पहले हमारे को किन किन चीजों की जरूरत है उसको रोड पे ले जाने से पहले, so that कोई प्रॉब्लम ना हो? सर सबसे पहले हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हाँ बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए, जो भी व्हीकल इंश्योरेंस है वो होना चाहिए हमारे पास। बाइक हेलमेट होना चाहिए, हेलमेट कंपल्सरी है, हेलमेट ये होनी चाहिए। कंपल्सरी है, ये 3 चीज तो जरूर होनी चाहिए। पॉल्यूशन भी होना चाहिए। हाँ अच्छा मुझे ये बताओ, हेलमेट क्यों कंपल्सरी है? हेलमेट तो हमारी सेफ्टी के लिए कंपल्सरी है कि मतलब हम बाई चांस हो जाता है, अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है, गिर जाता है, कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए हेलमेट कंपल्सरी है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग बिना हेलमेट के चलते हैं, हमने देखा है। जैसे तो हाँ चलते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कुंदन, ये ना टेंडेंसी है, ये लोगों की धारणा रहती है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी दूर तक ही तो जाना है, इसमें क्या दिक्कत है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति आज मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है और उसमें 20-25 किलोमीटर का रास्ता है और वो सोचे कि कोई बात नहीं, क्या होगा, मैं हेलमेट बाद में पहन लूंगा, और अचानक से कोई बहुत बड़ा उसका एक हादसा हो जाता है, कोई ट्रक सामने से आ जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए और मृत्यु हो जाए, उसके बाद उसके पास हेलमेट पहनने की ऑप्शन ही नहीं बचेगी। शायद उसने हेलमेट पहले पहना होता तो शायद वो बच भी जाता। तो प्रोटेक्शन, तो इसका मतलब हमेशा प्रोटेक्शन लेके ही साथ में चलना चाहिए, चाहे कुछ हो या ना हो। हम अपना जो भी सेफ्टी है वो पहले करनी चाहिए, बाद में प्रिकॉशन करने का समय नहीं मिलेगा। बात तो होती नहीं है, एक बार दुर्घटना घट गई उसके बाद तो ऑप्शन बचती नहीं, ऑप्शन तो दुर्घटना से पहले होती है हर एक के पास, और वो तभी होती है जब मेरे को ये चीज लगे कि हाँ ये मुझे खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज हवाई यात्रा करता हूँ, ठीक है, और मैंने ऐसी टिकट ली जो सस्ती थी, जहां मैं बैठ के जा सका, लेकिन उसमें पैराशूट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। वैसे तो अमूमन हवाई जहाज में कोई दिक्कत आती नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आ गई और प्लेन क्रैश हो गया तो मैं क्या वापस नीचे एयरपोर्ट पे जाके टिकट बदल सकता हूँ अपनी? कि नहीं, मुझे तो वो वाली टिकट दो जिसमें पैराशूट है। नहीं, उसके लिए मौका ही नहीं। तो दोस्तों मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको पहले नहीं खाना कौन दे दिया उसको? ये आपको पहले ही विचार करना पड़ता है कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या निर्णय लेने हैं, व्हाट आई हैव टू डिसाइड, व्हाट आई हैव टू प्लान इन केस ऑफ वर्स्ट सिचुएशन। आप सभी लोग ऑलरेडी मार्केट में है, कोई इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड का कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ अगर आप इंश्योरेंस की एडवाइस भी कस्टमर को देते हैं तो एक आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और उनको आप एक एक डिसीजन लेने में मदद कर पाएंगे जो वो हमेशा पोस्टपोन करते हैं। आर यू एग्री विद मी और नॉट? कभी कभी सुबह उठकर ये नहीं कोई कहता कि आज मुझे इंश्योरेंस लेनी है। हर व्यक्ति सुबह उठकर ये जरूर सोचता है कि आज मुझे हो सकता है नया फोन लेना हो, नई गाड़ी लेनी हो सकता है कपड़े खरीदूंगा मैं, हो सकता है नए घर की बात करूंगा, हो सकता है मेरे नई जॉब लगे, लेकिन कोई व्यक्ति सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि आज मुझे इंश्योरेंस खरीदनी है। तो मेरी बात से सहमत है। अब देखो कोई तो बोले तो अच्छा लगेगा। नहीं सर, नहीं बात है, तो कोई ना सोच कि इंश्योरेंस लेना है। मैं माधुरी दीक्षित से पूछना चाहूंगा क्योंकि इनका नाम बड़ा मेरे को सेलिब्रिटी टाइप लगा, तो मैं चाहूंगा एक बार वो बोले अभी तक जो मैंने बोला उसके ऊपर उनकी क्या टिप्पणी है। हेलो।
यस प्रसाद। अभिषेक अरोड़ा जी से पूछना चाहूंगा कि उनके लाइफ में कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आके कहे कि नहीं आज तो मेरे को लाइफ इंश्योरेंस करनी है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ अभिषेक। सर। हाँ अभिषेक जी सर बताएं। मैं बात कर हाँ जी बताइए। अभिषेक जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। अच्छा कोई अच्छा। भी बता सकता है। प्रसाद आप बताने की कोशिश कर रहे थे हेलो हेलो करके। हाय सर, अभिषेक दिस साइड। यार सर अनफॉर्चुनेटली सर हमारे कंट्री में इस लेवल की मेच्योरिटी नहीं कि इंश्योरेंस को इतना सीरियसली हम लोग ले, तो वो थोड़ा हिंड्रेंस है। दैट इज द रीजन इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप बात करने जाए तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। वो माइंडसेट ऐसा है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो अभिषेक व्हाट डू यू सेल, व्हाट डू यू डू एट, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं एक्चुअली सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग अपना बैंकिंग से किया था समटाइम इन सेकेंड हाफ ऑफ समवेयर अराउंड 2006-7। तो अभी हाल फिलहाल में फिर मैं हॉस्पिटैलिटी एविएशन सेक्टर का पार्ट रहा हूँ ऑफ रिसेंटली। बट अभी जस्ट फ्रीलांसिंग स्टफ आई एम इनटू एंड गेटिंग इनटू इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। ओके तो फ्रेंड्स आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। हम स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर अ पीपीटी। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखे तो मुझे बताना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको, आज का एजेंडा है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग। लाइफ इंश्योरेंस किसको चाहिए, हु नीड्स लाइफ इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मैं पूछना चाहूँगा। हेलो। हेलो। यस यस। हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी कि अगर मैं किसी व्हीकल का इंश्योरेंस निकालता हूँ वेल बकेट के थ्रू। हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ तो अगर आज आज की डेट में, आज मतलब मैं एक आध इंश्योरेंस में इशू करता हूँ तो एम परिवहन की वेबसाइट पे वो इंश्योरेंस अपडेट होने में कितने दिन लगेंगे? राजीव आप बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। परिवहन जो बात आप कर रहे हैं वो मोटर इंश्योरेंस का पार्ट होता है सर। तो किसी दिन हम मोटर हाँ इंश्योरेंस वही का मैं सेशन वही करेंगे। हाँ आज सर लाइफ इंश्योरेंस पे बात कर रहे हैं हम लोग। जब मोटर इंश्योरेंस की बात ओके करेंगे तो ओके, डेफिनेटली वी विल आंसर योर क्वेरी। ठीक है ठीक है, ओके। ओके सर। आज आज सिर्फ हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। जीवन बीमा, लाइफ को इंश्योरेंस के करने के क्या फायदे हैं और आप इसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये आज का हमारा एजेंडा है। मेरा अगला सवाल है कि एक लाइफ आदमी की ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, कोई बता सकता है? सर 70 to 75 years। और उसमें क्या क्या पड़ाव आते हैं उसकी लाइफ में? और सर पहले अपना फॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद जॉब, मैरिज, उसके बाद फैमिली, फिर फैमिली में फिर जो बच्चे होंगे उनके मैरिज, एजुकेशन, फिर उसके बाद रिटायरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कुंदन मिश्रा। कुंदन जी, वेरी गुड यार, आप अच्छा एड्रेस ले रहे हो। सबसे पहले आदमी स्टार्ट करता है अपनी नौकरी, काम काज, सिंगल होता है। फिर सेकंड स्टेज आती है उसकी, वो मैरिड होता है, अर्निंग रहती है 30-35 साल की उम्र तक। फिर
अगला स्टेज आता है उसके बच्चे हो जाते हैं, अगला स्टेज आता है फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फिर स्टेज आता है उसका रिटायरमेंट हो जाता है। और जब वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी इस लाइफ में, तो उसकी इनकम शुरू में तो बहुत कम होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे वो तरक्की करता जाता है, उसके अप्रेजल्स होते जाते हैं, प्रमोशंस होते जाते हैं, या अगर वो बिजनेस में है तो बिजनेस को भी वो अपना हर साल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज हाउ उसकी इनकम हर साल बढ़ जाती है। ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, बट एक टाइम के बाद उसकी इनकम घटने लगती है, ऐसा क्यों? फोक्स अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम के बाद इनकम क्यों घटती है? सर रिटायरमेंट फेज शुरू हो जाता है ना, फिर तो उसके बाद में इनकम कहाँ से मिलेगी उसको? सर इनकम घटती नहीं है, इनकम बढ़ती है, बट उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हाँ, तो ओवरऑल इनकम उसकी या फिर उसकी कम हो सेविंग जाती जो जिससे एक्सपेंसेस के बाद वो कम हो जाती है। हाँ है। क्या मार्केट इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, हाँ जी, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है। हाँ, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, उसकी इनकम तो बढ़ ही रही थी जब तक कि वो 50-60 साल तक का था, लेकिन जब उसके बाद वो रिटायर हो गया तो हो सकता है वो उतना वक्त, उतना समय, उतनी एनर्जी या उतना फुल टाइम ना दे पाए, तो उसकी इनकम एज पर प्रीवियसली कम हो जाती है। और दूसरा एक ये पॉइंट भी सही बोला इन्होंने कि उसके खर्चे भी बहुत हो जाते हैं, उस टाइम बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती है, खुद की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, उसमें बड़े खर्चे होते हैं। एंड ये एक लाइफ स्टेज है एक किसी भी व्यक्ति की, अगर आप देखें। यस सर। एक सेकंड। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये लाइफ स्टेजेस है, लेकिन इस पूरी लाइफ स्टेज में एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अभी पिछले 2 सालों में हमने देखा पैंडेमिक आ गया, एंड कोविड के चलते वेव 1, वेव 2, अभी वेव 3, क्या क्या आ रहा है, और हमने कितनी कितनी कैजुअलिटीज देखी है। तो लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन सबको कवर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है। वेरी गुड यार, आप बोलते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन में क्या क्या है? हम सर फिक्स शेयर मार्केट है, इंश्योरेंस है, बाकी एफडी है, जो भी डेट डेट फंड है। म्यूचुअल फंड। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, अगर मैं 1 साल का डिपॉजिट करूंगा तो मेरे पास म्यूचुअल फंड है, फिक्स डिपॉजिट है, कैश डिपॉजिट है। अगर मैं 1 से 5 साल में करूंगा तो मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या है? पेंशन है, लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, प्रोविडेंट फंड्स है, पीपीएफ जिसको हम बोलते हैं। करेक्ट? यस सर। ओके।
अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग्स की, क्योंकि लाइफ तो 1-2 साल की कहानी नहीं है। अगर आज मैं 25, 30, 35, 40 साल किसी भी स्टेज पे हूँ लाइफ के, तो मेरे को एटलीस्ट अपने रिटायरमेंट तक का तो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ा डिसिप्लिन होना पड़ता है और फाइनेंशियल प्लानिंग को बड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। और यही एक चीज है जिसपे हमें तय करना है कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 5 इयर्स एंड अबव की बात करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस के अलावा ऐसा कोई प्रोडक्ट है जहां पर, फॉर एग्जाम्पल, कि आज मेरी जिम्मेदारियां हैं, लेट्स से मुझे अपने दोनों बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज और अपनी रिटायरमेंट के खर्चे के लिए कुछ पैसा जमा करना है, और वो मैंने बैंक में करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही पता चला कि मेरे साथ कुछ अनसर्टेनिटी हो गई। तो क्या बैंक वाले जो मेरे डील्स थे, जो मेरे प्लान थे, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनका पैसा देने मेरे फैमिली को आएंगे? नहीं, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उसके अलावा नहीं आएगा। इंश्योरेंस के अलावा मुझे बताइए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां मैं पैसा अभी 10 रुपए रखूं और वो मुझे आश्वासन दे 1000 रुपए का। आप यहाँ पे 1000 रुपए जुड़ेंगे अगले 20 साल में, अगर बीच में अगर कुछ हो गया तो 1000 रुपए हम आपकी फैमिली को दे देंगे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। नहीं। आज मैं म्यूचुअल फंड में अगर लाख रुपए लगाऊं, हो सकता है कल वो 1.25 लाख हो जाए, लेकिन वो मुझे 50 लाख की गारंटी भी देगा। वो 50 लाख की गारंटी जब भी देगा जब मैं हर साल उसमें पैसा डालूंगा और वो हर साल बढ़ता जाएगा। इंश्योरेंस मुझे दोनों फायदे देता है, वो आज का रिटर्न भी देता है और मेरे ना होने का प्रोटेक्शन भी देता है, राइट? यस सर। ये आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल है। अगर मैंने 20 साल के टाइम में अगर ये सोचा कि मुझे 50 लाख रुपए सेव करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं वो इंश्योरेंस के थ्रू कर सकता हूँ, जिसमें पहले दिन से ही 50 लाख की गारंटी भी होगी, जिसको हम सम एश्योर्ड कहते हैं। अगर बीच में अगर कोई दुर्घटना हो गई मेरे साथ तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अगर नहीं हुई तो मैं 20 साल वो पैसा जमा करता रहूंगा, उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, होता रहेगा, और वो 20 साल बाद वो 50 लाख रुपए अपने ही हाथों से मैं अपनी फैमिली के लिए खर्च करूंगा। अब एक सवाल और आता है, किसी को कितने इंश्योरेंस की जरूरत है? ये कैसे पता चलेगा किसको कितनी इंश्योरेंस चाहिए? सर, उसके गोल्स और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट्स कितने हैं, ये देख के उसको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है ये पता चलता है। एब्सोल्युटली, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा। और उसको हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स में ये कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू है, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां हैं, हर व्यक्ति के अपने अलग अलग खर्चे हैं, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग इनकम है, और उसकी इनकम, उसके खर्चे और उसकी फैमिली के साइज के ऊपर उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये कहता है कि मेरे आज घर को चलाने के कितने खर्चे हैं, मेरे ग्रोसरीज, मेरे किचन, मेरे ईएमआई, मेरे फीस, मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनके खर्चे कितने हैं जो मेरे रहते मुझे पूरे करते हैं। स्टेप 1 वो है। स्टेप 2 उसमें ऐड कर दीजिए आपके फ्यूचर लाइबिलिटीज। फ्यूचर लाइबिलिटीज पे क्या होगा कि आपने जो आज लोन लिया है वो आपको पूरा करना है, आपने घर के लिए जो किसी से लोन ले रखा है वो आपको पूरा करना है। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इज इट क्लियर यहाँ तक? यस सर।
कोई व्यक्ति कहता है कि जी आप मेरे पास इंश्योरेंस है। जल्दी दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जब भी मैं कस्टमर के सामने बैठता हूँ तो कस्टमर से एक ही बात सुनने मिलती है कि भाई मेरे पास तो इंश्योरेंस है। तो आपका सवाल होना चाहिए, क्या वो इंश्योरेंस आपके लिए सफिशिएंट है? क्या सवाल होना चाहिए दोस्तों? ये इंश्योरेंस आपके लिए सफिशिएंट है जितना आपने ले रखा है? हाँ, आपको सुनने को मिलेगा, हर व्यक्ति बोलेगा अरे मेरे पास तो इंश्योरेंस है। लेकिन आपने कहा था, आपने क्या कहना है? वेरी गुड। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इंश्योरेंस पे यकीन रखते हैं, आपने जाकर हाथ बढ़ाकर इंश्योरेंस लिया। तो मेरा आपके साथ बात करने का मतलब और भी अच्छा हो गया, आप मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर आप उससे बोलिए, आपकी इंश्योरेंस क्या आपके लिए पर्याप्त है? इज योर इंश्योरेंस इज सफिशिएंट फॉर यू? एंड देन वहां से आपका डिस्कशन शुरू होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक क्वेश्चन पूछना था सर। यस। जो स्टेप 1 में एक्सपेंसेस है वो कितने ईयर्स के हिसाब से देखना है? एक्सपेंसेस तो मंथली इंटू मतलब कितना होना चाहिए डेली एक्सपेंसेस के हिसाब से, या कितने एक्स हमें लेके चलना है, ईयरली या मंथली? 5/12 सॉरी, मंथली एक्सपेंसेस। मेरा घर 20,000 में चलता है, मेरा घर 50,000 में चलता है, मेरा घर 1,00,000 में चलता है। ये डिपेंड करता है कि मेरे घर के एक्सपेंसेस कितने हैं। वो स्टेप 1 में आ गया। स्टेप 2 में आ गया, मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मेरे आउटस्टैंडिंग लोन क्या है, जो मेरे ना रहने पे मेरी फैमिली को भुगतान करने पड़ सकते हैं। वो टोटल मैं आज ऐड कर दूं तो मेरी ह्यूमन लाइफ करनी। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इट्स वेरी गुड कि आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा। व्हाट्स योर गुड नेम? अभिषेक। सर अभिषेक। ये स्टेप 1 का क्लियर नहीं हुआ कि मतलब आप जैसे मंथली एक मंथ का एक्सपेंस तो नहीं लेंगे, तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन किस बेसिस पे होनी चाहिए? स्टेप 1 में एक्सपेंसेस कितने टाइम पीरियड के लिए कवर करना है? फॉर एग्जाम्पल आपके सिंपल उसके लिए मैं करता हूँ कि मान लो मेरा घर का खर्चा 50,000, ठीक है? 50,000 रुपए हर महीने मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे घर पे फिर भी वो 50,000 का खर्चा खड़ा रहेगा। बच्चों की एजुकेशन, घर के बिल, घर की ग्रोसरी, मेरे घर की EMI। यस और नो? यस। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कि मैं आज ना भी रहूं कि 50,000 रुपए महीना मेरे को मिल जाए? तो उसकी गणित कैसे निकालते हैं? ह्यूमन लाइफ वैल्यू से निकालते हैं कि 50,000 आज मेरे बैंक में कितना पैसा हो कि मुझे उसका इंटरेस्ट 50,000 रुपए मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए रखा है, अब इसको ध्यान से सुनना, मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए रखा है और वो उसको मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूं और बैंक मुझे 6% का ब्याज देता है, तो साल का कितना हुआ? कोई भी बता दे। 1 करोड़ पे 6% अगर बैंक मेरे को इंटरेस्ट देता है तो साल का कितना हुआ? 6 लाख रुपए। बिल्कुल सही। 6 लाख अगर साल का हुआ तो महीने का कितना हुआ? 50,000। 50। तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरा 50,000 रुपए का महीने का खर्चा है तो मेरा 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब आप समझ गए मेरा मतलब? यस। और अगर मेरा 25,000 रुपए महीने का खर्चा है तो मेरी इंश्योरेंस 50 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए, ताकि मेरे ना रहने पे वो 50 लाख या 1 करोड़ मेरी फैमिली को मिल जाए और जिसको वो बैंक में रखकर अपना मंथली इनकम इमीडिएटली उसी दिन से क्रिएट कर।
इसमें स्टेप 2 ये ऐड करना है कि मान लो मेरे घर के खर्चों के साथ मेरा आउटस्टैंडिंग लोन, ईएमआई नहीं, आउटस्टैंडिंग, मान लो मैंने घर के लिए 20 लाख रुपए किया था, 5 लाख में अदा कर चुका हूँ, 15 लाख रुपए हुए, 15 लाख और ऐड कर दूंगा मैं अपने वैल्यू के अंदर। तो अगर मेरी वैल्यू 1 करोड़ की आ रही थी तो अब 1 करोड़ 15 लाख की हो गई। अगर मेरी वैल्यू 50 लाख की आ रही थी तो अब वो वैल्यू 50 लाख प्लस 15 लाख। यहाँ तक क्लियर है अभिषेक? जी। आगे चले। आपको ये क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? पिरामिड, बॉटम में क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, फिर हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर गोल्ड है, या फिर एमएफ है, इक्विटी, रियल एस्टेट, फिर कोई आर्ट। इसको समझा सकता है ये क्या लिखा है इसमें? ये इम्पोर्टेंस शो कर रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए। आई थिंक सो। वेरी गुड। तो मैं इसको इलाबोरेट कर देता हूँ कि हम ये देखो, एक फाउंडेशन की बात करते हैं। कभी भी जब हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव रखी जाती है और उसकी नींव इतनी स्ट्रांग बनाई जाती है ताकि वो किसी भी झटके को झेल जाए और घर का जो भार है उसे उठा सके। ठीक है, ऐसे ही अपने जिंदगी में, अपने पूरी लाइफ साइकिल में सारे झटकों को झेलने के लिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए आप। जो भी उसका सबसे पहले अर्निंग है, उस अर्निंग से सबसे पहले उसको लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। और कितनी लेनी चाहिए मैंने आपको अभी अभी बताया पिछली स्लाइड में। ताकि घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही कोई दुर्घटना घट गई तो इमीडिएटली उसकी फैमिली को पता है, उसके हेड ऑफ द फैमिली ने कितनी प्रोटेक्शन ले रखी है कि उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। आज आप देखो कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, डिजीजेज है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, लीवर की प्रॉब्लम्स है, अब तो नए नए वायरस क्रिएट हो रहे हैं। हॉस्पिटल जाओ तो मतलब एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो वो सारी चिंताएं हम अपने पास क्यों रखें जब उसका समाधान हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो नंबर 2, किसी भी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा कि मैं प्रोविडेंट फंड क्रिएट करूंगा, मैं कोई फिक्स डिपॉजिट करूंगा, मैं आई विल बाय गोल्ड फॉर माय फैमिली टू यूज इन माय वेडिंग, जब बच्चों की शादी होंगी और वो गोल्ड हो सकता है मेरे लिए इमरजेंसी में भी काम आए। फिर उसके बाद मेरे पास कोई धन बचता है तो मैं म्यूचुअल फंड्स में खरीदता हूँ, उसके शेयर खरीदता हूँ, इक्विटी में पैसा लगाता हूँ ताकि वो पैसा तेजी से बढ़े। फिर उसके बाद अगर कोई मेरे पास पैसा बचता है तो फिर मैं बड़ा घर खरीदता हूँ, ऑफिस खरीदता हूँ, 1-2 प्रॉपर्टीज खरीदता हूँ, रेंटल्स बनाता हूँ। और मैं अगर बहुत ही रिच कैटेगरी में हूँ तो अगर ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्म सर एक्टर्स होते हैं, क्रिकेट स्टार्स होते हैं, वो आर्ट्स भी खरीदते हैं, वो एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स भी खरीदते हैं। वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आगे चल के उनको रिटर्न देती है, बट वो बहुत वॉलेटाइल है। बीच में सर ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्लीज पूछिए। हाँ सर, मैं अमरदीप बोल रहा हूँ। यार अभी सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई आदमी महीना में 30,000 रुपया कमाता है हाँ तो वो कितने का इंश्योरेंस करेगा? उसकी उम्र क्या है? उस आदमी का उम्र मान लीजिए 30 साल है। उसकी उम्र 30 साल है, वो 30,000 कमाता है, उसका घर का खर्चा कितना है? तो घर का खर्चा तो मालूम नहीं है सर हमको। तो 30,000 में अगर वो घर खर्च मेंटेन कर रहा होगा, साथ में उसका बच्चे का पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, एजुकेशन जब होगा। आप उस व्यक्ति के साथ आधा घंटा चाय पे घर पे बैठोगे ना, आप उसको कुछ भी इंश्योरेंस का प्लान बताने से पहले या म्यूचुअल फंड बताने से पहले ये पिरामिड सामने रखना।
अगर वो कोई भी सेविंग कर रहा है ना, वो बाद में करे, सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित करे। लाइफ इंश्योरेंस ले और हेल्थ इंश्योरेंस ले। और ये कहा जाता है, सर एक मिनट सर, जब मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ लोगों से, तो लोग कहते हैं मैं लाइफ इंश्योरेंस में पैसा क्यों दूं, कि लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी जब होगा उस समय मैच्योरिटी वैल्यू तो उस समय बाजार के हिसाब से उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, तो मैं पैसा म्यूचुअल फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करूं LIC की जगह। आपको मैं लाइफ आपको इंश्योरेंस में वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मैं उस आदमी को कैसे समझाऊं कि नहीं भैया आप लाइफ इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड ना लो, या आप लाइफ इंश्योरेंस लो और बाद में म्यूचुअल फंड लो। मैं आपका ना दर्द समझ पा रहा हूँ और मैं इसका आंसर दूंगा। आपने अभी अभी मेरी बात सुनी होगी जी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, मैं वापस जाता हूँ। जी, आपने कहा था कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो 5 रुपये पर जमा करने पे 100 रुपया दे दे। यस, आज म्यूचुअल फंड में अगर मैं 5 रुपए जमा करूंगा तो हो सकता है वो 5.5 हो जाए, हो सकता है वो 4.25 हो जाए, हो सकता है वो 6 हो जाए। लेकिन अगर आज मैंने इंश्योरेंस में 5 रुपए जमा किए तो हो सकता है वो 5 रुपए 15 पैसे हो सकता है वो 5 रुपए 25 पैसे ना हो, लेकिन 5 रुपए से घटेगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, भगवान ना करे मिस्टर कस्टमर, कल आप घर से बाहर निकले और आपके साथ कोई दुर्घटना घटी तो म्यूचुअल फंड आपको 5 रुपए 25 पैसे पकड़ा देगा फैमिली को, लेकिन उस 5 रुपए 25 पैसे से आपका घर या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर नहीं होते। तो जिस प्रकार जब हम कोई नया घर बनाते हैं तो उसकी नींव बहुत पक्की होनी चाहिए, उसी प्रकार आपकी जिंदगी की नींव के लिए ये सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप 5 रुपए की इंश्योरेंस आज लोगे मिस्टर कस्टमर, तो आपको 100 रुपए की गारंटी, 100 रुपए की गारंटी आज दूंगा। इसलिए आप लाइफ इंश्योरेंस करो। जी सर, आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात आपने जो बताई कि सर की जिंदगी की जो नींव है, तो नींव, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो नींव है, वो ईंट का पत्थर है जिसपे उसका जिंदगी खड़ा रहेगा। बिल्कुल बात सही बात बात। आप मेरी बात समझ रहे होगे, क्योंकि मैं आपका दर्द समझता हूँ। मैंने अपने सेशन में स्टार्ट होते ही पहले बोला था, कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर ये नहीं कहता मुझे लाइफ इंश्योरेंस खरीदनी है या मुझे आज अपने परिवार को सुरक्षित देखना है। वो बात करेगा मैं आज गोल्ड ले लूं, वो बात करेगा मैं आज कार ले लूं, मैं फर्नीचर नया कर लूं, नया घर ले लूं, मैं या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ले लूं जो जिसमें 15%, 20% या 50% का रिटर्न दे रहा हो। मतलब होड़ लगी हुई है दुनिया में यार, पागलपन। जी पैसा कमाने का मैं कह रहा हूँ कमाओ। आप देखो ना, टॉप में जो है म्यूचुअल फंड आ रहा है, रियल एस्टेट आ रहा है, आर्ट एक्सेट्रा आ रहा है। ये आप इसकी फोटो खींच लो यार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिखाओ। और जो मैं 15 मिनट से आपको स्टोरी सुनाई है वही समझाना। सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर। कैसे रखते हैं लोग, घर की सर नींव में ईंटों के साथ कंक्रीट भी भरा जाता है और पैसा भी बहुत लगता है। आप फिर आराम से चैन की नींद सोते हो कि कल को भूकंप भी आ गया तो मैंने सरिये और कंक्रीट से इतने मजबूत कराया इस नींव को। उसी तरह जैसे हम अपनी लाइफ में कल को अगर मेरे को कुछ हो गया तो एटलीस्ट मेरे को पता है ये जो अलमारी में मेरा बॉन्ड रखा है ना लाइफ इंश्योरेंस का, उससे मेरी फैमिली जाके पैसा देगी, जो किसी इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिले। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब भी मैं किसी आदमी को इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ, अगर मैं प्राइवेट कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कहता है कि भाई ये तो प्राइवेट है, सहारा जैसा कंपनी भाग गया, इस इंश्योरेंस कंपनी का क्या होगा। नहीं नहीं भैया, मैं यहाँ पे पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं LIC में पैसा लगाऊंगा। सारा इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। बहुत अच्छी बात है, देखो पूछने से अच्छी बात है। हो सकता है आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी सहारा। आपको IRDA के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो भी कंपनीज IRDA के तहत रजिस्टर्ड है वो कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, वो कंपनी कभी भाग नहीं सकती, वो कंपनी अपने मन मुताबिक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में ला नहीं सकती। जैसे हर बैंक RBI रेगुलेट करता है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बैंक होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है,
ऐसे ही हर इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में IRDA के तहत रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं। हाँ, अगर आप पॉलिसी को जरूर पढ़ लें कि पॉलिसी क्या कहती है। हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के लिए, हर निवेश के लिए, हर टाइम के लिए एक अलग पॉलिसी बनती है, वो आप जी सर। सकते हैं। हर पॉलिसी गारंटी नहीं करती, हर पॉलिसी अच्छे रिटर्न की बात करती है, हर पॉलिसी में अलग अलग टाइम होता है। आप उससे ये कह सकते हैं कि देखो इंश्योरेंस कंपनी कोई भागेगी नहीं, लेकिन आपने पॉलिसी क्या ली है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वो सारी पॉलिसीज के बारे में बताना चाहता हूँ और फिर आप अपना प्रोडक्ट बताइए। हम आपको आज जो बताएंगे ना वेल्थ बकेट के थ्रू, जो आज हम सेशन कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ आपको वही पॉलिसीज बताएंगे जिसमें ना कोई मार्केट का रिस्क हो, जिसमें ना कोई बोनस की बात करें, जिसमें ना कोई हम प्रॉफिट की बात करें। उसमें सिर्फ बात होगी गारंटी। जिस प्रकार आप बैंक में पैसा रखते हैं FD के अंदर और आपको पता है इतने साल डिपॉजिट करने के बाद आपको ये रिटर्न आ जाएगा, उसी प्रकार अगर आप मेरे से फ्यूचर जनरली से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो 2021 में मैं आपको बता दूंगा कि 2041 में 20 साल बाद आपको कितना पैसा मिले। इसमें ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा, ताकि आप चैन की नींद सो सके, आप उस पॉलिसी को अपनी अलमारी में रख सके, अपनी बच्चों को बता सके कि देखो जब आप कॉलेज में जाओगे तो ये 10 लाख रुपए आपकी फीस के लिए काम आएगा। जब आपके बिटिया की शादी होगी तो ये 20 लाख रुपए उसको 2041 में मिलेगा। उसमें 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा, ये गारंटी है। और मिस्टर कस्टमर, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो गारंटी 2021 में मैंने दे दी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, स्टैम्प पेपर पे लिख के है। और बताइए इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आगे चले दोस्तों। आई थिंक मैंने आपका आंसर दिया। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे जी सर। हम किन लोगों को मिले, किन लोगों से बात करें। और मैं दोस्तों, आज मुझे 15 साल, सही बताया राजीव जी ने। सर एक सवाल था मेरा, बीच में हाँ, इंटरप्ट, सॉरी। पहले अपना नाम जरूर बताएं क्योंकि मैं PPT चला रहा हूँ तो मुझे नाम नहीं दिखता है। तो सवाल पूछने से पहले आप अपना नाम और जी कहाँ से बोल रहे हैं वो जरूर बताएं। सर, मैं अरविंद भोसकर नागपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सर इंश्योरेंस के बारे में अपना सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं ये कह रहा था कि हमारी बैंक डूब जाती तो बैंक भी गारंटी के तहत RBI हमको पैसे नहीं देती, तो इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर HDFC या कोई भी बजाज, कोई भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, वो कंपनी अगर डूब जाती है तो क्या गवर्नमेंट गारंटी के तहत हमें पैसा देगी वो? हाँ बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ना एक सॉल्वेंसी मार्जिन नाम की चिड़िया होती है, जो फाइनेंशियल टर्म होती है, हाँ करते हैं। हाँ। तो IRDA क्या कहता है कि आपको अगर कोई भी पॉलिसी लेके आनी है मार्केट में, हाँ, तो जितना प्रीमियम आप कस्टमर से ले रहे हो, हाँ, लगभग उतना ही प्रीमियम आपको हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन। कल को कोई भी कंपनी, ताकि डूबे ना, हमारा काम देखो, कोई भी बैंक कैसे डूबता है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे भी डूबता है, कि बैंक का काम होता है एक हाथ से पैसा जमा करना, डिपॉजिट, और एक हाथ से लोन देना, जी डिसबर्सल। जी। अब बैंक जब इंस्टॉलमेंट होता है उसमें चांसेस हाई होते हैं, तभी RBI का काम है उसको रेगुलेट करना, ताकि कोई भी बैंक सॉल्वेंट ना हो। अगर कभी सॉल्वेंट हो भी गया तो उसकी जिम्मेदारी RBI की है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के बर्स्ट होने के कारण बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों दोस्तों? इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंश्योरेंस कंपनी का काम सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट करना है, ना कि लोन देना। बराबर है। और जो भी प्रीमियम हम देते हैं उसमें हम फ्यूचर के लिए डेथ कितनी होगी, क्या होगी, क्या हमारे खर्चे होंगे, उसके लिए पूरे एक एक्चुरियल बैठा होता है।
वो एक्चुअल टीम डिसाइड करती है पिछले 100 साल का क्या हमारा डेथ रेशियो रहा है, क्या हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, क्या हमारे नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, हुए हैं, उसके बेसिस पे चलता है कार्यक्रम। मैं जी कहता हूँ अगर 1% कोई कंपनी नहीं भी चल पा रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कंपनी को या तो किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज कर देगी या कोई नई कंपनी को उसको हैंड ओवर कर देगी, लेकिन जो कस्टमर को दी हुई गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर करेगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट IRDA से अप्रूव होके मार्केट में जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अरविंद, इट इज जी अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड मुझे अच्छा लग रहा है आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपको ये बहुत हेल्प करेगा मार्केट में। आज आप मुझे बता सकते हैं कि अभी इंडिया में कितनी इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ की? नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं पता। सर 24 कंपनीज। वेरी गुड, 24 इंश्योरेंस कंपनी है। आप मेरे को बता सकते हैं 2001 से पहले कितनी कंपनी रही होंगी भारत में, इंडिया में? 5-10 कंपनियां हुई। 250 कंपनियां थी। ओके 250 कंपनियां थी जो रेगुलेटेड नहीं थी। मुकेश नागर ने कंपनी खोल दी, अरविंद ने कंपनी खोल दी, सहारा ने कंपनी खोल दी, बिरला ने कंपनी खोल दी और उनके अपने अपने दुकान चल रही है। कल को कोई भाग जाता है तो उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं थी। जी जब IRDA का गठन हुआ उन्होंने ये सब रेगुलेट किया। जो कंपनी रेगुलेट हो सकती थी उनको एक फॉर्म किया और LIC तो पिछले 70 साल से चल रही है। उसके LIC भी जब बनाई थी, LIC के अंदर भी करीबन 125 इंश्योरेंस कंपनियों को यूनाइट करके एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया था। और अब 2001 के बाद जो भी बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो इंश्योरेंस के बिजनेस में आना चाहते हैं उनको ये लाइसेंस दिया गया है। और लाइसेंस देने का मकसद भी है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जैसे फ्यूचर जनरली की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फ्यूचर इंडियन ब्रांड है, जनरली इटालियन ब्रांड है। जनरली जो है विश्व की टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज में उसका नाम आता है, विश्व की, भारत छोड़िए, एशिया छोड़िए, विश्व की, जिसको हमारे देश में इनवाइट किया गया और फ्यूचर के साथ टाई अप किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो भी प्रीमियम कस्टमर दे रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही डिपॉजिट हो रहा है। आप मुझे प्लीज एक मिनट टाइम दीजिएगा, एक कॉल आ रहा है। जी अरविंद जी, उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर मैं एक श्योर करना चाहता हूँ, श्योर थोड़ा सा कि अभी मैं समझ तो गया हूँ सर क्या कहना चाहते हैं मुझे, लेकिन अब मैं ये समझूं कि अगर एक कंपनी मानते हैं कि कोई 250 कंपनियां थी, अब IRDA के अंतर्गत हो रहा है सब कुछ, तो कोई क्लेम करता है और उस समय कोई ऐसे सरकमस्टेंस आते हैं कि वो कंपनी कोलैप्स हो जाती है, लेकिन चूंकि IRDA के अंतर्गत है, डिपॉजिट वहां पे है, तो ये बंदे का जो क्लेम है और वो बंदा भी राइट है, अच्छे सही तरीके से चल रहा है, तो अगर कुछ उसको कम ज्यादा हो जाता है तो ये जिम्मेदारी क्या गवर्नमेंट की होती है पैसा देने की? सर पिछले 20 साल में तो कोई कंपनी की डिफॉल्ट हुई नहीं है। नहीं नहीं एक मिनट सर, मेरा सवाल ये नहीं है सर क्या हुआ ये नहीं, मेरा सवाल ये है कोई कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है और ऐसे में कोई बंदे का क्लेम होता है तो क्या वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है, IRDA की जिम्मेदारी बन जाती है उसको देना? यस बिल्कुल अरविंद जी सही कह रहे हैं आप। जब भी कोई क्लेम अगर आता है और उस टाइम कंपनी ओवरटेक के टाइम में होती है तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है उस क्लेम को दिलवाना। तो हम क्लाइंट को ये एश्योर कर सकते हैं कि अगर कंपनी का किसी का सवाल था कि सहारा बंद हो गई, HDFC या फिर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बजाज है, ये है वो है, और ये कंपनियां अगर बंद हो गई तो हम क्या जवाब देंगे, प्राइवेट कंपनियों का करते हो क्या जवाब देंगे? तो अगर गवर्नमेंट नहीं, एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IRDA अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो फिर तो ना कोई प्राइवेट रहा और कोई सरकारी रहा, तो 100% ये बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो क्या मैं ये श्योर हो जाऊं कि IRDA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
क्लेम को 100% देगी, कोई कंपनी कोलैप्स हो जाती है तो। थैंक यू नरेश, आई विल टेक दिस क्वेरी। तो आपका बिल्कुल कहना जायज है। तो यही हम बताना चाह रहे थे आपको कि पिछले 20 साल में ये जब से IRDA बना है तो इनका रोल ही ये है कि पहले तो कोई कंपनी कोलैप्स ना हो। अगर कोई कंपनी कोलैप्स होती भी है तो जैसे पीछे एक दो कंपनी थी जिनको मर्ज करके उन्होंने बड़ी कंपनीज में मर्ज कर दिया, लेकिन क्या होता है कि वो जो बुक्स होती है एज इट इज ऑनर करनी पड़ती है। वो जो नया इंश्योरेंस कंपनी बनेगी उस कंपनी से उनको ऑनर करेंगे और IRDA उसमें सपोर्ट करेंगे, तो सारे क्लेम्स मिलेंगे। इसमें कोई देखो, किसी भी कंट्री में इकोनॉमी चलाने के लिए दो ही पिलर है, एक है बैंक और एक है इंश्योरेंस। बैंक का पैसा भी सरकार के पास जाता है और इंश्योरेंस का पैसा भी सरकार के पास ही जाता है, जो कंट्री की इकोनॉमी ड्राइव करने में यूज होता है। तो सरकार का पूरा रोल है, क्योंकि ये सारी इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये कोई प्राइवेट, जैसे मैंने बताया कि जब रेगुलेटर नहीं था तब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी चलती थी और वो बंद होती थी और खुलती थी, वो सब होता था। अभी ऐसा कुछ नहीं, अब एवरीथिंग इज गारंटेड। So we'll move on to the session. तो आपको मैं ये बता रहा था दोस्तों कि who needs life insurance? हर कोई व्यक्ति जिससे भी हम मिलो वो कहता है मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है। तो तब आपने उनसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू की चर्चा करनी है। अगर वो व्यक्ति कहता है मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तब आपको उसको पिरामिड दिखाना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत तो सबसे पहली है। मेरे दोस्त जरा मेरे को चाय पिला और बैठ, मैं तेरे को समझाता हूँ कि आज की सिचुएशन में लाइफ कितनी अनसर्टेन है। खैर, कोविड से पहले ये बहुत लोग कहते थे उनके पास समय नहीं है, उनके पास अभी पैसा नहीं है, या उनके पास अभी कोई, वो बिलीव ही नहीं करते लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन कोविड के बाद ना ये लोगों की धारणा बदल गई है। कोविड के बाद लोग खुद बुला के पूछते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्तों, हमारे पास अच्छे एडवाइजर्स नहीं है जो लोगों को सच्ची और साफ सलाह दे सके, जो लोगों को गाइड कर सके कि सर आपको इतनी इंश्योरेंस चाहिए और इतनी प्रोटेक्शन आपके लिए ज़रूरी है, या आने वाले टाइम में आपको ये पैसा लगेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, और उसके लिए आज आपको इतना इन्वेस्ट तो यहाँ करना ही चाहिए। पहले आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें। जो मैंने आपको ह्यूमन लाइफ बताया था, 1,50,00,000 का एग्जाम्पल देके इतना लाइफ प्रोटेक्शन चाहिए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही प्रोडक्ट से पूरा हो जाए। आजकल लाइफ इंश्योरेंस में इतने अच्छे प्रोडक्ट आ गए हैं जहाँ आप मात्र 15-20 हज़ार रुपये में भी 1 करोड़ का कवर आप दे सकते हो। वो टर्म प्लान होते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई सेविंग्स नहीं होती, कोई रिटर्न्स नहीं होते। वो जस्ट लाइक एक कार इंश्योरेंस की तरह होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से सारी कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती। अगर आप मर गए तो टर्म प्लान काम करेगा, अगर आप जी गए तो टर्म प्लान का पैसा तो खराब हो गया। उस टाइम आपको सेविंग्स चाहिए होंगी और सेविंग्स आपने करी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो प्रोडक्ट की नॉलेज भी हम होगा तो उसमें देंगे। आपके पास लोगों से मिलना है, लोग उनके पास छोटे बच्चे हैं, लोग उनके पास पेरेंट्स हैं जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। एनी फैमिली जिसने लोन ले रखा है और या वो प्लान कर रहे हैं कोई बड़ा घर लेने के लिए, तो उनको ज़रूर बताएं कि सर आप लाइफ में तरक्की करें, आगे बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर रखा है? क्या आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रखा है? अगर नहीं कर रखा तो सर एक बार एक काम करते हैं, हम बैठते हैं, वी विल डिस्कस कि आपके जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है वो कहाँ चल रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या चल रही है, आप आपकी फैमिली कितनी प्रोटेक्शन है, और उसके बाद आप अपने खर्चों का डिसीजन लीजिए। दिस इज माय सजेशन। इस तरीके से आपको कस्टमर से बात करें, और आप उन कस्टमर से भी मिल सकते हैं जो अपने लाइफ में एडवांस स्टेज पे है। आज 99% जनता को, पॉपुलेशन को
कोई पेंशन का सहारा नहीं है, कोई रिटायरमेंट का सहारा नहीं है, प्राइवेट जॉब्स में लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलती, बिजनेस करने वालों को कोई पेंशन नहीं आएगी, कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी। कल को बिजनेस डूब गया तो फिर वो रेगुलर इनकम कहाँ से आएगी, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो हर स्टेज के लिए हमारे पास, हर फैमिली के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस है जो हम फ्यूचर जनरली के प्रोडक्ट के द्वारा आप तक पहुंचाएं। आई थिंक दिस इज ओके टिल नाउ। फिर मैं आगे बताता हूँ। आई थिंक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट इट इज ओके राजीव जी, इफ यू डोंट माइंड। मुझे अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन आ रहे हैं और मे बी वी विल बी एबल टू हेल्प देम। जी मुकेश जी आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Just give me a second. Naresh, can you take it forward from here? I have a just 2-minute call. Naresh, are you there? Okay, I think it is not. He's not there. तीन चीजों का ख्याल रखना है हमें, फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और टैक्स का आपको फायदा मिले। जब भी हम कोई प्लान करते हैं तो उसमें कस्टमर तीन ही चीज देखता है कि उसको टैक्स का फायदा हो, उसको अगर जरूरत पड़े तो फंड्स मिल जाए और उसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक पेमेंट ना करनी पड़े। इस चार्ट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये इट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। हमने इसमें कंपैरिजन किया है लाइफ इंश्योरेंस, बैंक के साथ एफडी, ईपीएफ, पोस्ट ऑफिस एंड म्यूचुअल फंड। अगर सबसे पहला कॉलम आप देखेंगे प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन सिर्फ कहाँ दिखने को मिल रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी हाँ जी जी सर। मैं कह रहा हूँ पहला अगर कॉलम देखें प्रोटेक्शन का, तो सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है प्रोटेक्शन? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस। आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो प्रोटेक्शन सिर्फ मुझे लाइफ देगा, ना बैंक देगा, ना पीपीएफ देगा, ना पोस्ट ऑफिस देगा, ना म्यूचुअल फंड देगा। सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी में लाइफ इंश्योरेंस हाई है, सेफ है, मेरा पैसा सुरक्षित है, बैंक के अंदर भी मेरा सुरक्षित है पैसा, मोस्टली मेरा सभी जगह सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड में स्टार लगा हुआ है, म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लिक्विडिटी मॉडरेट मैंने लिखी है क्योंकि मैं सारा पैसा नहीं निकाल सकता, कुछ पैसा निकाल सकता हूँ कभी इमरजेंसी लाइफ इंश्योरेंस में। बैंक में हाई है, पीपीएफ में आप पैसा सारा नहीं निकाल सकते, लो है, पोस्ट ऑफिस में लो है, म्यूचुअल फंड्स में हाई है। एटीसी का बेनिफिट आप देखें, एटीसी का बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस में बैंक एफडी में नहीं है, पीपीएफ में है, पोस्ट ऑफिस में है, म्यूचुअल फंड्स में कुछ जगह है हमारे पास।
लेकिन अगर आप देखें 80D या 1010D, अच्छा ये कोई मुझे बता सकता है 80C 80D और 1010D क्या है? सर टैक्स बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट है। 80C ATC है जब हम जो प्रीमियम देते हैं वो हमारे इनकम टैक्स से डिडक्ट हो जाता है और उसका इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। और 1010D है जब हमें मेच्योरिटी मिलती है तो मेच्योरिटी के ऊपर ये पैसा हमारा टैक्स फ्री होता है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। 80D रह गया अभी। ATD वो है जो हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लेते हैं, या हमारे पॉलिसी के अंदर कोई राइडर्स है जो हेल्थ को कवर करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर कस्टमर्स फॉर सेविंग प्रोडक्ट। अगर हम कंपेयर करें बैंक एफडी से, पीपीएस से, पोस्ट ऑफिस से और म्यूचुअल फंड से, तो ये हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होती है। अब हम आपके सवाल ले सकते हैं। सर सबसे पहला मेरा सवाल था कि कंपनी का एक तो इंश्योरेंस में कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर अवेलेबल होंगी, कंपनी का क्राइटेरिया क्या रहेगा एडवाइजर्स के लिए, प्लस सपोर्ट क्या रहेगी कंपनी की, और कंपनी पे आउट किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो माय क्वेश्चन कंसिस्ट इन 4 सेक्शन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। वेरी गुड। ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पर जनता दिल्ली की है। आई एम वेरी हैप्पी। आपसे हो सकेगा तो हम मुलाकात भी करेंगे, वापस आएंगे। तो सुरेश भाई, सबसे पहला तो ये है कि कंपनी हम फ्यूचर जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज का वादा जरूर करता हूँ, प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट। बाकी लोग मीटिंग कि हम बस इसको फिनिश करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुन ले। आपके मतलब की बात हो रही है कि क्या प्रोडक्ट, क्या पैसा, क्या प्रोसेस और क्या हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई है। तो भाई फ्यूचर जनरली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुरेश, और इसी के प्रोडक्ट के हम पूछ करने की बात करेंगे। आज आपके रूबरू इसलिए कराया है क्योंकि वेल्थ बकेट को लगता है कि हमारी टीम बेस्ट है, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर रही है, हमारी टीम आपको अच्छे प्रोडक्ट दे पाएगी, अच्छे इंसेंटिव्स दे पाएगी और अच्छा सपोर्ट कर पाएगी कस्टमर के पास क्लोजर्स कराने में भी। दिल्ली में हमारे पास सपोर्ट फंक्शन है, जो अगर आपको कभी लगता है कि किसी को कोई लाइव सेशन की ज़रूरत है या एक दो कस्टमर्स पे हेल्प की ज़रूरत है, तो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर जाके क्लोज कर सकते हैं आप। पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट, एक्चुअली मैनेजर्स को साथ ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट यू नो वी नीड स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड दैट इज टू इन हाउस, नॉट ऑनलाइन, बिकॉज certain things which we can clarify face to face. Ajib, you can make note of it. If they want, we can do in-house training in Delhi immediately. राजीव, जो फोटोग्राफ ले रहा है ना, जीपीएस पे या तो E4 दिखा रहा है। राजीव, okay, I think he is not able to speak. तो वो करा देंगे सुरेश, it is not a problem. ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी, प्रोडक्ट आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगे, रेट्स आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगे, सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। हमारा प्रोसेस ही सारा, अगर आप जाए आप देखेंगे तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस KYC हमें भेज देना है, हम बैठे बैठे वो लॉगिन कर देंगे, एवरीथिंग इज देयर। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अभी तो ये था कि इंश्योरेंस क्यों और इंश्योरेंस किससे करवानी है, किससे बात करनी है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि हम कौन से प्रोडक्ट मार्केट में हम कस्टमर्स के पास लेके जाएं। तो मेरे ख्याल राजीव जी अभी उसके लिए आपको बता देंगे नेक्स्ट टाइम। जल्दी ही हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी आपको इससे फैसिलिटेट कराएंगे दिल्ली के अंदर। एंड कमीशन स्ट्रक्चर?
कमीशन यस, वेल्थ बकेट से आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके इनबॉक्स में कौन से प्रोडक्ट पे क्या कमीशन है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग मेथड है। कोई 10 साल का होता है, कोई 20 साल का होता है, कोई होल लाइफ होता है। तो वो आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा, वेल्थ बकेट से जल्दी ही आपको मिलेगा अभी। नहीं, आपके जो भी रिस्पेक्टिव आरएम है ना, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निशा, ज्योति, जो भी आपके आरएम है, आप उनसे बात कीजिए। दे विल गाइड यू अबाउट द कमीशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? थैंक यू। अभी इनका आ रहा था कि इनको इन हाउस ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन नहीं, तो दिल्ली में अभी कभी भी आप अरेंज करा दो प्लीज। हाँ बिल्कुल, आप जब भी पॉसिबल होगा हम दिल्ली में अरेंज करवा सकते हैं इसको। हाँ। एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? जी, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनीबॉडी? नो सर। Sir, regarding do we need to go for any licensing, or it would be without the license part? How does this work out? सर, आपका जो कोड हमारे साथ वेल्थ बकेट ओपन है, आप उसी कोड पे काम कर सकते हैं। Okay. Any other query? ओके। एक क्वेरी मैं कर सकता हूँ। वो क्वेरी ये है कि अगर कोई इंसान एज ए करियर के साथ काम करता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बिल्कुल, आप बताइए। ठीक है, और वो आपके साथ एक लॉन्ग वे काम करता है। हाँ जी सर। सर प्लीज गो ऑन। जी सर। सर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। आई थिंक उसका डिस्कनेक्ट हो गया रवि। हेलो। हाँ जी बताइए। सर कोई स्टैच्यूटरी इश्यू तो नहीं आएगा आपके कोड पे अगर हम लाइफ पॉलिसीज बेच रहे हैं या हेल्थ पॉलिसी या जनरल पॉलिसीज बेच रहे हैं तो? सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, काफी सारे पीओस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। और सर वो जो भाई पूछना चाह रहे थे कि अगर हम वेल्थ बकेट के साथ फुल टाइम काम करें तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कि भाई हमें सस्टेनेबल कितनी इनकम मिल जाएगी? सर देखिए, आप एक बात समझिए, हम पूरी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। आप यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में डील कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल है, इंश्योरेंस भी अवेलेबल है, बहुत जल्दी उसके अंदर लोन भी ऐड करने वाले हैं। तो आप एक तरह से कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। आप आराम से 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके पास फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी सर्विस आती है, लोन है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, गोल्ड है, स्टॉक है, आपको सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर। हाँ बताइए, आपका क्वेश्चन है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर 10 साल 15 साल आपके साथ काम करता है। हाँ जी। वो किसी भी रीजन से फिर काम करना बंद करता है, कितने लंबे काम करने के बाद उसको बाकी के टाइम में काम छोड़ने के बाद कंपनी से कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं? सर फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन टर्म इस तरह मिल सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कराई होगी उसकी जो भी ट्रेल कमीशन आएगी वो आपके अकाउंट में मिलती रहेगी, चाहे आप हमारे साथ काम करें या ना करें, आपको जो ट्रेल कमीशन है वो मिलती रहेगी। और इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस में जो रिन्यूअल आए हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ओके। हाँ वो तो आपको सिक्योर है हमेशा के लिए। उसके ऊपर आपने कोई हाईलाइट नहीं दिया, इसलिए मैं बोल। नहीं बिल्कुल, आपके जो भी रिन्यूअल या ट्रेल कमीशन है वो आप ही के हैं। ओके। और ये जो सारी चीजें आप कमिट कर रहे हैं, ये कहीं आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसके लिए? सर आप आपके आराम कौन है सर? क्या नाम हुआ आपके? आराम कौन है सर? मेरे आराम तो वो निशा है। निशा है ना? मैं वो आपके साथ एग्रीमेंट शेयर करती है, पूरा इसके लिए एग्रीमेंट बना हुआ है जिसको आप साइन कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। देखिए मैंने किस लिए पूछा कि नॉट ओनली फॉर मी, अगर कुछ चीज अच्छी होती है तो हम उसको मार्केट में रेकमेंड भी करते हैं। नहीं बिल्कुल, आपने नहीं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवाल हैं, आप पूछ सकते हैं सर।
वेबिनार रखा इसलिए गया कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकें, उनका सोल्यूशन कर सकें। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर मैं? राजीव गुप्ता। राजीव जी, आप यहीं पर ऑफिस में बैठते हैं? हाँ जी। चलिए राजीव जी, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। एनी अदर क्वेरी? नो थैंक यू, थैंक यू। मुकेश जी, आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन। आई थिंक सबसे लवली ऑडियंस, मुझे बड़ा मजा आया बात करके, बड़े अच्छे सवाल जवाब हुए और आज मुझे लग रहा है कि यार ये वाकई में कुछ काम करने वाले लोग जिनसे मेरी आज बातचीत हुई है, बड़े वैलिड क्वेश्चन थे एंड आई होप आया होगा और मैं आशा करता हूँ यू विल मीट मोर फ्रीक्वेंटली। और अगर आप दिल्ली में हैं तो राजीव जी एक सेशन तो आप और प्रोडक्ट के लिए अरेंज कर लीजिए नेक्स्ट वीक। बिल्कुल बिल्कुल। काम करते हैं and I'm very happy to see the excitement and I hope that you will be able to get more and more customers for Wealth Bucket and as a team we can do wonders together. Thank you very much. Okay, thank you मुकेश जी। Thank you sir. मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय हमारे लिए निकाला, हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करता हूँ कि हम इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे और एक अच्छी बिजनेस टीम तैयार करेंगे जो सबके लिए फायदेमंद हो। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye Ravi.